دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج کل کے جو وہابی ہے، اہل حدیث، ان لوگوں کے دعوے یہ رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل عرش اعظم پر وذات خود موجود ہے۔ کیا دعویٰ ہے ان کا؟ اپنی ذات کے مطابق عرش اعظم پر موجود ہے۔ یہ ان کے دعوے رہتے ہیں اور یہ ہمارے سنی بھائیوں سے حجت بحث کرتے ہیں، مجوری کرتے ہیں۔ تو یہ ذاکر ہے تلنگانہ کا، اس کو عین اللہ پر بہت بات کرنے کی کھجلی رہتی ہے۔ ہم نے الحمدللہ اس کی اتنی خطرناک کھجلی اتاری ہے، آپ اس ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے مطابق عرش اعظم پر ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش اعظم پر ہے، ذات کے مطابق نہیں، کیونکہ ایسا تو اللہ عز و جل نے بھی نہیں فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ ذات کے مطابق ہے، خود سے بنا کر کے یہ لے کر کے آتے ہیں۔ تو اب یہ ذاکر جو کہہ رہا تھا کہ ذات کے مطابق ہے، تو ہم نے اس سے کچھ سوال کر لیے کہ ذات کے مطابق ہے تو یہ بتا عرش اعظم کے اوپر ہے یا عرش اعظم سے اوپر ہے؟ ان کے دعوے دیکھیں کہ ان کے دعوے یہ تھے کہ عرش اعظم پر ہے، لیکن الحمدللہ ایک سنی کے سامنے اس نے اپنا دعویٰ ہی بدل دیا۔ یہ خود اس پر اقرار کرنے لگا کہ اللہ عرش اعظم پر نہیں ہے، عرش اعظم سے اوپر ہے، اور کتنا اوپر ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب یہ اپنے ہی دعوے میں پھنس گیا۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش اعظم کے اوپر ہے وذات خود، اور اب یہ کہنے لگا، یہاں جب ہم نے اس کو الحمدللہ اس کی گردن مروڑی اور اس کو پکڑا تو یہ خود ہی اپنا دعویٰ چینج کر گیا اور بولنے لگا کہ اللہ عرش اعظم پر نہیں ہے، اور کتنا عرش اعظم سے اوپر ہے یہ ہم بھی نہیں جانتے۔ تو اس ریکارڈنگ کو آپ سنیں کہ اس نے کتنا برا اپنے ہی دعوے میں یہ پھنس گیا اور اپنا دعویٰ چینج کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو آج تک عرش اعظم کے اوپر مانتے تھے بذات خود، اب اس سے ہی پلٹ گیا۔ لیکن ان کی قسمت میں ہدایت کہا۔ تو سب سے پہلے الحمدللہ ہم یہ واضح کر دیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے عین اللہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل کہا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک حدیث شریف بیان کر دیتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث شریف ہے 15613 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل کے تعلق سے وہ کہاں تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ لا مقام تھا، یعنی کہ کوئی مکان ہی نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں۔ یعنی کہ واضح ہو گیا جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ لا مکان ہے۔ تو حدیث شریف سے واضح ہو گیا کہ یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ لا مکان ہے، ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ الصمد، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے۔ جب اللہ بے نیاز ہے تو اللہ عرش اعظم یا کسی پر بھی ٹھہرنے یا رکنے یا بیٹھنے یا اس پر موجود ہونے سے بے نیاز ہے۔ صاف صاف اللہ نے فرما دیا کہ اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ لا مکان ہے، یعنی کوئی مکان ہی نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ جہاں ازل سے اللہ ہے وہیں ہے۔ حدیث شریف سے یہ واضح ہو گیا اور قرآن شریف کی سائد سے ہمارا الحمدللہ عقیدہ واضح ہو گیا۔ اب آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں۔ امن علی قادری، جی امن علی قادری، جاکر صاحب بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل، الحمدللہ، بارک اللہ۔ جی میرے کو ایک بات بتاؤ کہ نہیں یہ سنیں اللہ کے نبی اور صحابہ سے تم جو جواب دیے نا، یہ جواب کون سی کا ہے تمہارے کو؟ رکو پہلے مجھے یہ بتاؤ، اگر اس پر تم بات کرو گے بہت برا پھنسو گے، بہت برا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ابھی اس پر اگر تم بات کرو گے، بہت برا پھنسو گے، جواب کون سکھایا؟ سنو پہلے، بہت اتنا برا پھنسو گے جاکر صاحب کہ تاریخ میں تم کبھی کسی سے بات نہیں کر پاؤ گے، اتنا برا پھنسو گے۔ ارے جناب، آپ پھنسے پھنسائے ہو، ہم خالی بتائیں گے آپ کو، ساری بڑی بڑی ڈینگے مارو گے۔ سنیں پہلے، ادھر نہ جاؤ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اتنا برا پھنسو گے کہ تاریخ میں یاد رکھو گے۔ بڑی ڈینگے مارنا، سنیں اب سنو پہلے اس کو سنو۔ میں نے سنا ہے کہ عین اللہ پر دماغ میں الٹی سیدھی
बातें भर के और घूमते रहते हो आइन अल्लाह पर, लोगों को परेशान करते रहते हो बगैर दलील। बगैर दलील के? जी जी, आज तक कोई मुकल्लिद दलील नहीं नहीं सुनी आपने, जितनी भी दलीलें दी सारी झूठी थी, और जो भी बात की आपने कुरान और हदीस से हटकर की। बोलो झूठों पर अल्लाह की लानत बोलो। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अब सुनो पहले मेरी एक बात, दलील दे देता हूँ, सुनिए पहले। सुनो अल्लाह के पहले नबी सुनो, सल्लल्लाहु अलैहि अरे वसल्लम- रुको, सुनो सुनो सुनो, जाकर 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 सुनो सुनो सुनो, मैं ऐसे उल जुलूल Call बात नहीं recording has करता। now ended. सुनो पहले, मैं हाँ। ऐसे उल जुलूल बात नहीं करता, मैं कायदे से बात करने का आमिल हूँ, तो चाहिए तुम आपको कि कायदे से करोगे? बात करें, ठीक है? तो कौन से कायदे से बात करोगे? हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपका दावा जान लेते हैं कि आइन अल्लाह पर आपका दावा क्या है, वो बताएं। ठीक है, आप नहीं बताएंगे अपना दावा? मुद्दई आप है ना? नहीं, आप नहीं है मुद्दई, आपको नहीं नहीं, मालूम? मैं मुद्दई नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह को मैंने माज़अल्लाह जाकिर भाई आपको सुनो, नहीं मालूम अल्लाह कहाँ पर? अरे जाकिर भाई आपको सुनो, मैंने अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला को मजबूर नहीं माना है, उसकी मखलूक पे आराम करने वाला नहीं माना है, आपने माना है, आप मैंने तो मुद्दई नहीं हो। माना है। अच्छा, मैंने कहा यानी मेरा ये अकीदा है। अच्छा आपने नहीं, अच्छा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो आपकी आज तक जो भी रिकॉर्डिंगें थी कि अल्लाह अर्श आज़म पर बज़ाते खुद मौजूद है, वो सब आपने नींद में करी हैं। ये अकीदा किसका अकीदा? ये अकीदा कौन सा ये अकीदा है? आपका है, ये आपका है या नहीं? हाँ, ये तो अल्लाह के नबी का अकीदा है, हाँ, सहाबा का अरे अकीदा है। सुनो कुरान तो में बताया सही, गया है। सुनो तो सही, उनका किसी का हाँ। नहीं, उधर झूठ मत बांधो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ, तो आप आपका नहीं जो मानते ना दावा इसको? है, सुनो पहले, आपका जो दावा है वो पेश करें। नहीं, मैं पेश करूंगा, क्या तुम क्या करोगे? तुम तकलीफ मैं करते फिर उसके फिरोगे, बाद बताने में के लिए उसके बाद में अपना दावा पेश करूंगा, पहले पेश तो नहीं, करो। पहले उसूल बनाओ कि तुम दावा पेश करो या मैं दावा पेश करूंगा। तुम उसके दावा बाद में पेश तुमको करोगे। अरे सुनो तो सही ना, मैं खैर आप मैं ही सुनो पेश पहले, करूंगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा उसूल तो सुनो ना, हाँ सुनाओ। मेरा उसूल सुनो। मैं पहले दावा पेश करूंगा, तुमको जो वजाहत लेना है ले लेना, ठीक है? क्या तुम अपना अकीदा बताओगे? तुम भागोगे नहीं जहरिया और मुअतज़िला की तरह, बातिल फिरके की तरह भागोगे जहलिया और नहीं। मुअतज़िला की तरह तुम्हारा अकीदा है, ये भी मैं साबित देखेंगे करूंगा, ना, जो टेंशन मत अकीदा लो। नहीं बताएगा वो जहमिया और मुअतज़िला की तरह हरकतें करेगा ना। नहीं नहीं, तुम्हारा अकीदा मैं साबित कर दूंगा जहलिया मुअतज़िला अरे की यार, तरह, पहले अपना टेंशन तो मत लो। बताओ, बोलो हाँ मैं मेरा बताऊंगा बोल के बोलो ना। अरे सुनो तो सही, जहलिया ये मुअतज़िला की देखो, तरह तुम्हारा अकीदा मैं साबित भी करूंगा। सुनो अरे जाके, यार वो देखो, मेरी जब बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा मेरी हूँ, मुकम्मल होने जब दो तुम बात। अपना दावा पेश करोगे, उसके बाद मैं मेरी बात वजाहत लेने के मुकम्मल बाद होने अपना दो ना। दावा पेश करूंगा, ठीक है? मैंने आपको गाली तो दी नहीं है, इस पर हाँ करो। मेरी बात मुकम्मल होने दो। अरे बात मुकम्मल होने को क्या है भाई, तुम दावा पेश करोगे, वजाहत के बाद सुनो पहले, से गुफ्तगू होगी खाली। सुनो सुनो सुनो, यहाँ मैं कुछ शर्तें बयान करता हूँ, उस शर्त पे अगर तुम्हारा इत्तेफाक हो तब तुम उस पर रजामंदी का इजहार करना, अगर नहीं हो तो ना कर देना। शराइत नंबर 1 ये है कि जब हमारी और तुम्हारी बात होगी तो जो दावा होगा दलील उसके ऐन मुताबिक दी जाएगी, अगर दावे के मुताबिक दलील नहीं है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, बीच में टोका भी जाएगा, बात आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, ठीक है? शर्त नंबर 2, जब बात होगी तो उसूल से बात होगी, यानी जिस टॉपिक पर बात चल रही है उसी टॉपिक पर बात होगी, इससे अगर हटकर बात की तो बीच में टोका जाएगा और आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। शर्त नंबर 3, ठीक है, तुम्हारे बीच में मैं नहीं बोलूंगा 2 मिनट से पहले, और मेरे बीच में तुम नहीं बोलोगे 2 मिनट से पहले। हाँ, 2 मिनट के बाद टोक सकते हो और बोल सकते हो, अगर इजाजत लेना चाहे तो इजाजत दी जा सकती है, अगर नहीं दी तो फिर खामोश होना पड़ेगा 2 मिनट में, ठीक है? अगर ये शर्त तुम मेरी मानते हो तो बोलो। चलो मेरी इसके अंदर और एक शर्त लगा लो, उसके अंदर ऐड कर लो। तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त तुम मान लो खाली। जब मैं अपना अकीदा बताऊंगा तो तुम वजाहत ले लेना, जितनी चाहे वजाहत ले लेना। उसके बाद फिर अगेन जैसे ही तुम वजाहत ले लोगे तो तुम अपना अकीदा बताओगे। उसके बाद मैं मेरे मर्जी के हिसाब से जो वजाहत ले मांगूंगा तुम वो वजाहत दोगे। उसके बाद तुम मुझसे पूछोगे कि तुम जिस अकीदे पर तुम कायम हो उस अकीदे की दलील क्या है, तब मैं दलील पेश करूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं जब तुमसे पूछूंगा कि भाई तुम ये अकीदा जो बनाए हो, जिस अकीदे पर तुम हो उसकी क्या दलील है, तुम अपने अकीदे पर दलील पेश करना, उसूल के हिसाब से गुफ्तगू करो। तुम अपने अकीदे को ना समझ नहीं छुपाओ, पाए, अपने अकीदे को छुपाऊंगा। सुनो या फिर एक काम ये कर लो, सुनो, अरे मेरा उसूल तो तुम बोलो हाँ है या ना है, तुमको कबूल है कि नहीं है? मैं तुम्हारे 5 उसूल 5 शराइत तय सुनने के लिए तैयार हूँ।
सुनो सुनो तो मेरा एक तुम शर्त, सुनो तो सही। हाँ अरे सुनो तो सही, तुम समझ ही नहीं पाए। मैं ये कह रहा था कि बात उसूल ही के तहत होगी, कहा था मैंने अपनी शर्त में। इसका तो मतलब आप ये अपना है, अकीदा नहीं बताएंगे। सुनो सुनो, इसका मतलब ये मैं जो है, पूछा वो बोलो ना। अरे सुनो तो सही, उसूल देखा, का मतलब, जैसे गोल गोल घुमा रहे अरे बात को। जाकिर सुन तो लो पहले, का बहरे उरे हो, अब सुनो पहले। उसका मतलब ये है उसूल का कि तुम अपना दावा बताओगे, अपने माखज बताओगे, ठीक है, फिर मैं अपना दावा बताऊंगा, अपने माखज बताऊंगा, फिर उसके बाद तुम मुझे दलील दोगे अपने दावे पर, फिर उसके बाद मैं दलील दूंगा तुम्हें अपने दावे पर, ठीक है। ये है उसूल से बात, यही कहा था मैंने, तुम समझ ही मैंने भी नहीं तो पाए यही तो कहा मैं ना। क्या करूं। तो मैं जो कहा, मैं क्या कहा, हाँ मैं क्या तो बस कहा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो सुनो, अब फिर आप सुनो, अपनी, मैं सुनो अपना सुनो, अकीदा बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद तुम अपना अकीदा बता लेना, उसके बाद फिर तुम मेरे अकीदे पर वजाहत ले लेना, मैं तुम्हारे अकीदे पर वजाहत ले लेता हूँ, उसके बाद बिल्कुल मैं ली दलील जाएगी, दूंगा, उसके तुम दलील दे दो। पक्की बात है ना? बिल्कुल पक्की बात है। सबसे चलिए पहले, हमारा, हाँ हाँ, सुनो सुनो, हाँ हमारा दावा सुनिए। होता है, तनकी होती हाँ है, बिल्कुल, माखज होता है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं पहले दावा होगा ना, वो दावे पे पहले तुम वजाहत ले लोगे, अभी कहाँ से दलील आएगी? वजाहत कहते हैं तनकी को, ठीक है। आपका तो दावा होगा, उसके वजाहत ले बाद लो मैं या आपसे तनकीद वजाहत कर लो। लूंगा, आपके दावे पर जो तनकी होगी वो वजाहत लूंगा मैं मुकम्मल करने के लिए, ठीक है, ठीक है। फिर आप ठीक, मुझसे लेना, ठीक है, हाँ, और अपने माखज भी बताना होंगे आपने, उससे पहले ठीक, मुझे अपना दावा बता दो। ठीक है। चलिए, हमारा अहले सुन्नत वल जमात व अहलुल हदीस व अहलुत तौहीद का अकीदा है कि अल्लाह ताला की जात 7 आसमानों के ऊपर, अर्श से भी ऊपर है, अर्श और अल्लाह अर्श ताला का इल्म समा, बसीरत के एतबार से, मदद के एतबार से, रहमत के एतबार से अल्लाह ताला हमारे साथ है, और पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ इहाता कर रखा है, और इस जमीन पर अल्लाह ताला की जात मौजूद नहीं है, इल्म के साथ है अल्लाह। अच्छा, जाकिर साहब, आपका दावा मुकम्मल हो गया। मैं सिर्फ मैं पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने अभी शुरू में ये कहा था कि अर्श आजम के ऊपर है, तो अर्श आजम पर है या अर्श आजम से पर हम न कोई तजबीह देंगे, न कोई कैफियत बयान करेंगे। ये जो हम मिसालें दे रहे हैं, ये मिसाल देना भी गलत है, क्योंकि अल्लाह ने कहा लैसा कमिस्ली शैयन, उसके मिसाल की भी कोई मिसाल बयान नहीं कर सकता, समझे? अल्लाह ने कह दिया। अब आप इनकार करते तो बोलो भाई मैं अल्लाह को अर्श पर नहीं मानता। सुनो पहले, सुनो सुनो सुनो, तुमने क्या कहा कि अल्लाह अर्श आजम पर है या अर्श आजम के ऊपर है, ये बताओ। हाँ बिल्कुल, अर्श के, अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। या अर्श आजम पर नहीं है? पर का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अल्लाह अर्श आजम पर नहीं है, अर्श आजम के भी ऊपर है। जैसे मान लो ये 7 आसमान है, सुनो पहले, हाँ, ये 7 आसमान है, तो हमने कहा कि अल्लाह सातों आसमान के ऊपर है, तो इसका मतलब ये पता चला कि 7वें आसमान पर नहीं है, इससे भी ऊपर है। अब ऊपर कहाँ है ये मैं नहीं जानता, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि अर्श आजम के ऊपर है या फिर अर्श आजम पर है? के ऊपर है अल्लाह ताला। अच्छा, अर्श आजम पर नहीं है? नहीं, अर्श आजम पर ही है, जिस तरह तुम बोलते हो अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसलिए बोला कि अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल ही देना गलत है। अरे मिसाल नहीं दे रहा हूँ, आपके अकीदे की वजाहत ले रहा हूँ। हाँ, अगर कोई, अच्छा आपके लिए एक, जब आप नहीं सुन रहे हैं तो आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इमाम मालिक कहते हैं इस्तिवा मालूम है। इमाम मालिक का कॉल अभी पेश मत करो, सुनो 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 सुनो, इमाम मालिक का कॉल अभी पेश नहीं करो, अभी अपना सिर्फ दावा मुकम्मल करो कि अल्लाह ताला मुकम्मल कर लिया, मैं तो नहीं किया है। सुनो सुनो सुनो, जाकिर मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कह रहे हो कि अल्लाह ताला अर्श आजम के ऊपर है, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ऊपर है या अर्श आजम पर है, क्या मानते हो? तो वो बताओ मुझे। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, पर का माना और ऊपर का माना क्या है वो बताओ बोला ना। ऊपर का माना, जैसे मैंने कहा अल्लाह 7वें आसमान से ऊपर है, ठीक है, तो अब मैंने ये कह दिया, अरे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैंने ये कहा कि अल्लाह 7वें, अच्छा तो तुमने गलत मिसाल दी है, यानी तुमने गलत बात की है, तो ऊपर है अर्श आजम के या अर्श आजम के ऊपर है? ऊपर है, यानी अर्श पर नहीं है। अर्श पर होना और अर्श के ऊपर होने में तुम तो वही तो बता रहा हूँ, ये तुम अपनी अकल से नहीं बताना, ये तुम सनद से बताना। अरे नहीं, अभी सनद की बात नहीं हो रही है जाकिर, अल्लाह अर्श पर है या अर्श के ऊपर है, वो बताओ, दावा मुकम्मल करो।
मैं क्या कह रहा हूँ तुमको, जब तुम अगर इसके अंदर दोनों में अगर तुम अलग अलग है कहना चाह रहे हो ना, तो तुम मुझे समझ से बताना ना भाई, ऊपर का माना ये है, पर का माना नहीं ये नहीं है, नहीं, समझ से तुम मुझे बताना। मैं वो नहीं बता अपनी रहा अकल हूँ, मैं मान कुछ जाओ नहीं ना। बता रहा हूँ। जाकिर एक मिनट मेरी बात सुनो, तो तुम मैं अपनी कुछ अकल नहीं क्यों बता लगा रहा रहे हो? हूँ, मैं पर तुम्हारा पर- दावा मुकम्मल करवा रहा हूँ कि तुम अरे क्या मेरा कहना दावा चाहते हो। मुकम्मल है, तुमको समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या कहाँ है करूँ? मुकम्मल? तुमसे मैं अल्लाह पूछ ताला अर्श रहा के हूँ। ऊपर है। अच्छा, अल्लाह अर्श ताला के अर्श के ऊपर है, सुनो, या अर्श पर है, क्या कहना चाहते अर्श हो के वो बताओ। ऊपर है। अर्श पर नहीं है? अर्श के ऊपर है, पर का मतलब ऊपर ही हो अरे जाएगा ना, मियाँ, वो अर्श सही है। पर नहीं है, ये पूछ अरे रहा हूँ मैं। जाहिल तू को क्या समझाए, बोला कुछ बोले तो तुमको बुरा लगता। तुम्हें अगर अगर तुम चाहो तो तुम 1 मिनट में ये फैसला कर दो कि हाँ अल्लाह अर्श पर है, या फिर ये अरे कर यार दो कि अल्लाह नहीं ताला अल्लाह अर्श अर्श के के ऊपर है, तो तुम अल्लाह घुमा क्यों ताला रहे हो? एक मिनट मैं समझा देता हूँ। जिस तरह तुमने मिसाल दी ना, मैं जमीन पर हूँ, अगर मैं 3rd फ्लोर पर भी हूँ तब भी जमीन पर हूँ, बल्कि तुमने जो मिसाल अरे दी, लेकिन तुमने तो अल्लाह ताला मेरी सुनो ना, मिसाल जो है वो एक्सेप्ट अरे ही सुनो नहीं की। यार, तुमने तो सुनो उस पर मेरी बात मुझसे सुनो। बहस की, मैं तो तुम्हें समझा हाँ रहा सुनो, था, तुमने अच्छा बहस क्यों सुनो की तो फिर? सही। अच्छा हाँ मैं बताओ। भी समझाऊंगा ना तुमको, तुमको तो जल्दी समझ में आएगा नहीं। तुम ये कह रहे थे कि अगर 3rd फ्लोर पर है तो वो जमीन पर नहीं है, तो यही मैं तुमसे अच्छा पूछ सुनो, रहा हूँ कि अल्लाह अल्लाह ताला अर्श अल्लाह पर है या ताला अर्श ऊपर है? हाँ सुनो, अल्लाह ताला पहले तो अर्श का मोहताज नहीं है, ठीक है, खुली बात समझ लो आप। और अगर हम अच्छा। कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, तो अल्लाह ताला अर्श से मस्ल हुआ नहीं है, यानी अर्श से चिपका हुआ नहीं है, एक बात याद रख लो, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ, अब जैसे तुम बोलते हो, ठीक है, अब मैं सुनो, मेरी सुनो। हाँ, तुमने ये कहा है कि अल्लाह ताला अर्श से ऊपर है, ठीक है, अर्श से चिपका हुआ नहीं है, उसके ऊपर टिका हुआ नहीं है, या उस पर बैठा हुआ नहीं है, ठीक है। नहीं बिल्कुल हाँ, तो अल्लाह अर्श से जो है वो कितना ऊपर है, जरा वजाहत करो। नहीं, इसकी कोई वजाहत सलफ ने नहीं बयान की। जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि अर्श जो है 7वें आसमान से इतना ऊपर है कि 500 साल की मुसाफिहत है, ठीक है, ये मैंने अर्श से मिसाल ऊपर, दी, सुनो। हाँ, हाँ, तो इसी तरकीब से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कह रहे हो अल्लाह अर्श आजम से पर नहीं है, अर्श आजम के ऊपर है, उससे मस्त नहीं है, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तो अल्लाह अर्श आजम से कितना ऊपर है, वो जरा वजाहत करो। वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अरे तो क्योंकि तुम्हारा दावा ही मुकम्मल नहीं हुआ यार, क्यों? क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, तो मैंने तुमसे पूछा कितना तो मैं ऊपर है। अच्छा सुनो, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर मान रहा हूँ ना, तो कोई कैफियत बयान ही नहीं करो, कितनी ऊपर किलोमीटर है, वो कितना फासला है, क्योंकि इस तुमने मसले में कैफियत तो सहाबा ने बयान कर दी, ताबईन ने सुनो कोई- सुनो सुनो, तुमने ये कैफियत बयान कर दी जाकिर कि अल्लाह ताला अर्श से चिपका हुआ नहीं है, ये तुमने कैफियत बयान कर दी, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैं कोई कैफियत बयान नहीं कर रहा हूँ, कैफियत तुमने बयान कर भी दी और कह रहे हो मैं कैफियत बयान नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ, चिपका हुआ नहीं है तो कितना ऊपर है वो बताओ। अल्लाह बेहतर जाने, वल्लाहु आलम। तो तुम यहाँ कैफियतें क्यों बयान कर रहे हो जब अल्लाह बेहतर जाने? तो कि अल्लाह चिपका हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्योंकि सहाबा ने बता दिया ना इसके ऊपर, इमाम अबू हनीफा ने बताया, सुनो तो सही, अभी दलाइल की तो बात ही नहीं चल रही है, अभी तो खाली दावा मुकम्मल हो रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ कैफियत भी बता दी और कह रहे हो कि अल्लाह ही बेहतर जाने, तो तुम अभी भी वही अकीदा है। सुनो पहले सुनो, जाकिर नहीं लिया है अभी, सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम अल्लाह को, सुनो तो सही जाकिर, तुम अल्लाह को अर्श आजम से चिपका हुआ नहीं है ये मानते हो, तो कितना ऊपर है वो तो बता दो। वो अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे तो मालूम नहीं है, कोई हदीस में आया नहीं, तुमको मालूम है तो तुम बता दो। अच्छा, चिपका हुआ नहीं है ये तुम जानते हो? हाँ बिल्कुल, सलफ ने हमको बता दिया। यानी तुमको मालूम है अल्लाह कितना ऊपर है? यानी कि तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह ताला अर्श आजम पर नहीं है, वो कितना ऊपर है, कहाँ है, ये कोई नहीं जानता, ये कह रहे हो? नहीं, अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, कितनी ऊपर है हम नहीं जानते। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यानी कि तुमने ये कह दिया कि अल्लाह अर्श आजम पर नहीं है। अरे झूठ कहा है, तुम ही तो कह रहे हो कि अल्लाह अर्श आजम पर नहीं है और कितना ऊपर है ये मैं नहीं जानता, तो तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह अर्श आजम, सुनो जाकर सुनो, तुमने ये कहा है कि अल्लाह अर्श आजम पर नहीं है, ठीक है, अल्लाह अर्श आजम के ऊपर से ऊपर है, तो और कितना ऊपर है ये भी तुम नहीं जानते, यानी कि तुम नहीं जानते कि अल्लाह कहाँ है। सुनो मैं बता रहा हूँ, जाके मैं बता रहा हूँ, तुमने ये कहा तो यानी कि तो तुम्हारा ये अकीदा ही बदतरीन हुआ कि अल्लाह ताला अर्श आजम के ऊपर है, क्योंकि तुमने ही इसकी मुखालिफत कर दी। तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह ताला अर्श आजम के ऊपर नहीं है, अर्श आजम से ऊपर है, और कितना ऊपर है ये मैं नहीं जानता।
ला हौला वला कुव्वता, तुम अपने दावे पे पढ़ो जाकिर, तुम्हारा दावा यहाँ बातिल हो गया। सुनो अब ये बताओ, तुम मुझसे बात जो कर रहे हो वो क्या मौकिफ लेकर कर रहे हो, वो बताओ, फिर से दावा पेश करो। ईमान लाने के बाद आप ये जो हंसी मजाक कर रहे हो ना, तुम्हारा कब ईमान दिल से निकल जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बातिल अकीदे पर कर रहा हूँ। सुनो पहले, अब तुम फिर से अपना दावा पेश करो। अभी सुनो, मेरी बात सुनो ना, जाकिर मेरी बात सुनो, फिर से अपना दावा पेश करो। वो दावा जो था अर्श आजम के ऊपर है वो तुम्हारा बातिल हो गया, और जो तुम घूमते थे अल्लाह अर्श आजम पर बजाते खुद मौजूद है, ये भी सब बातिल हो गया, क्योंकि तुमने खुद ही कह दिया अल्लाह अर्श आजम पर नहीं है, अर्श आजम के ऊपर है, और कितना ऊपर है ये भी मैं नहीं जानता। तुमने खुद ही कह दिया मैं नहीं जानता कि अल्लाह कहाँ है। यानी कि ये देखिए कैसा अल्लाह का और अल्लाह के नबी का सहाबा का मजाक हो रहा है। अरे तुम्हारा उड़ाया है यार, तुम्हारा उड़ाया है, तुम्हारा जाकिर के ऊपर है, जाकिर तुम्हारा मजाक उड़ाया है यार, तुम्हारा मजाक उड़ाया है। अगर जाकिर मेरे पास अल्लाह के नबी की दलील है। अरे दलील की अभी यहाँ बात नहीं हो रही है, एक मिनट, दलील मैंने भी नहीं दी है, मैंने तो अपना भी दावा भी पेश नहीं किया है। जाकिर मेरी बात सुनो, अब मुझे तुम्हारा उड़ाया है, तुम्हारा। अब सुनो पहले, फिर से सुनो। अल्लाह का हंसी मजाक उड़ा रहे हो तुम, अल्लाह अरे तुम्हारा उड़ाया है ये, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हंसी तुम्हारी बन रही है, तुम अल्लाह की तरफ ले जा रहे हो। अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता अल्लाह के बारे में मेरे पर्सनल, मैंने तो तुम्हारा मजाक बनाया और तुम अल्लाह की तरफ ले गए अपने आप को बचाने के चक्कर में। अब सुनो पहले, सुनो पहले, सुनो जाकिर, सुनो जाकिर सुनो पहले, जाकिर सुनो, जाकिर सुनो तो सही। अब सुनो जाकिर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो जाकिर, तुमने अपनी ही जुबानी खुद अपना ही बातिल दावा रद्द कर दिया कि अल्लाह अर्श आजम पर है। तुमने खुद ही मान लिया कि अल्लाह अर्श आजम पर नहीं है, और कितना और कहाँ है, कितना ऊंचा है ये मैं नहीं जानता। तुम्हारी जुबानी, तुम्हारा अकीदा बातिल हो गया जाकिर। अब सुनो, फिर से अपना दावा पेश करो, फिर से शुरू से। चलो फिर से मौका देता हूँ, फिर से करो। मुझे बोलने दो, या फिर खाली ऐसे ही वक्त बर्बाद करने के लिए फोन करे हो, तो फिर नहीं बर्बाद करने के लिए तुम्हारे को बहुत लोग मिलते हैं, उनसे वक्त बर्बाद कर लेना। अरे सुनो जाकिर, अपना जो दावा है वो फिर से पेश करो जरा। मुझे तुम्हारा, मैंने तो अल्लाह की दावा पेश करो। इन्होंने कभी, मैंने अपनी वॉइस में कभी नहीं कहा कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर नहीं है, ये खुद मेरे अभी तुमने कहा है कि अल्लाह अर्श आजम पर नहीं है, अर्श आजम के ऊपर है, और कितना है ये मैं नहीं जानता, तुमने अभी कहा है। मेरी बात मुकम्मल होने दो ना, मैं आपके बीच में नहीं मुकम्मल करो, झूठ क्यों बोल रहे हो जाकिर बीच में? फिर अरे तकलीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तकलीफ की तो बात ही नहीं चल रही है, उस पर तो बहुत जबरदस्त होते हैं हम। अहले सुन्नत नहीं, सुनो जाकिर, देखो उसूल से हट के बात करोगे मैं बोलने नहीं दूंगा। तुम अपना सिर्फ अपना दावा पेश करो, अभी अहले सुन्नत की बात ही नहीं चल रही है, खाली अपना दावा पेश करो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या बोले या क्या नहीं बोले उसकी बाद में बात करेंगे, पहले अपना दावा पेश करो। जाकिर पहले अपना दावा पेश करो। चलो क्या किया, क्या दावा पेश किया वो बताओ। सुनो क्या दावा पेश किया है। असल इसका कहाँ, इसको दावा पेश करना बोल के डर के ये जो है वक्त बर्बाद कर रहा है। देखिए अरे तो तुम दावा, अपने दावे को तुमने खुद ही रद्द कर दिया जाके, तुमने खुद ही साबित कर दिया कि अल्लाह अर्श आज़म पर नहीं है। अपने ऊपर पढ़ो, कैसे हंसी मजाक उड़ा रहा है। अरे तुम्हारे बारे में उड़ाई है ये, देखो ये मैंने इनकी हंसी उड़ाई है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये अपने आप को बचाने के चक्कर में अल्लाह की तरफ ले गए। जाकिर अपना दावा पेश करो, यानी कि तुमने खुद ही अपना दावा बातिल कर दिया कि अल्लाह अर्श आज़म पर नहीं है। मेरे टाइम पे ना बोलो ना। नहीं, तुम अगर अपने टाइम पर सिर्फ अपना दावा पेश कर सकते हो और कोई बातें नहीं कर सकते, मैं भी, मुझे भी टोको, अगर वो तुम्हारा अकीदा था, वो तुम्हारा अकीदा है जाकिर। नहीं, अल्लाह ताला अर्श पर, ये जहमिया का अकीदा है। हाँ तो यही तो अकीदा तुम्हारा है, ये जहमिया का अकीदा है। नहीं तुम्हारा अकीदा ये है, तो किसका अकीदा है फिर ये? अरे तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह अर्श पर है, और तुमने खुद ही उसको बातिल साबित कर दिया कि अल्लाह अर्श पर नहीं है। अहले सुन्नत का अकीदा छोड़ो, अपना दावा पेश करो। चलो अहले सुन्नत का अकीदा क्या है वो बाद में बात करेंगे, पहले अपना दावा पेश करो। बाद में करेंगे। अल्लाह की इंशाअल्लाह बाकी अगली बार दावा भी नहीं करेगा। नहीं, अभी देखो अल्लाह ने इन पर इतनी सुनो जाकिर, सुनो जाकिर, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जो
जो हमारा दावा है कुरान और हदीस से पेश करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो तुम्हारा दावा है वो तुमने अपना दावा खुद ही रद्द कर दिया। जाकर सुनो, अरे सुनो, पहले सुनो, तुमने अपना दावा खुद ही रद्द कर दिया कि अल्लाह अर्श आज़म पर नहीं है। ये देखो, मैंने कब कल तक बहस करते थे अल्लाह की कसम उठा लो, अभी उठाता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि जाकिर ने अभी सुनो, जाकिर ने अभी खुद ही साबित कर दिया कि अल्लाह ताला अर्श आज़म पर नहीं है। अल्लाह इतना देखो, अल्लाह के बारे में आज तक जो जाकिर, सुनो, जो जाकिर आज तक ये कहता था कि अल्लाह अर्श आज़म पर है बजाते खुद, वो आज खुद कह रहा है कि नहीं है अल्लाह अर्श आज़म पर। ये देखो कितना बड़ा झूठ है ये तो। चलो फिर से दावा पेश करो जाकिर, फिर से दावा पेश करो। चलो, ऐसे ही बर्बाद कर दिया ना इन्हें, मैंने बोला ना ये जाकिर फिर से दावा पेश करो। तुमने अपने आप से अपने आप का रद्द कर लिया, अपना ही रद्द कर लिया तुमने। जाकिर अपना दावा पेश करो। काम करो, तुम बोलते जाओ। अच्छा, अपना दावा पेश करो जाकिर। अरे जाकिर, वहाबियत को 2 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर देते हैं। तुम्हारे ही दावे से तुम्हें बातिल करार दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह से। जी, आज ये अहले हदीस अहले तौहीद के सामने कोई जाकिर, अगर मैं कहूँगा कि जाकिर उसूल था ही नहीं। एक सेकंड, कैसे तोड़ रहा है? जाकिर एक सेकंड, अगर मैं कहूँगा कि जाकिर छत के ऊपर है तो जाकिर के जो पैर है वो डायरेक्ट छत को चिपके हुए है। अगर मैं कहूँगा जाकिर छत के है तो हवा में है तो छत की नफी हो जाती। सुनो जाकिर, तुमने कहा है कि अल्लाह अर्श आज़म पर नहीं है, अर्श आज़म से मस्त नहीं है। तो मैंने तुमसे पूछा कि कितना उठा हुआ है, तो तुम कह रहे हो मुझे मालूम नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। यानी कि तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह अर्श आज़म पर नहीं है। इन्हें अपने ही दावे का रद्द कर लिया हर तरीके से। इसीलिए तो इमाम अबू हनीफा, चलो मैं फिर से मौका, नहीं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया है उस पर बाद में बात करेंगे। पहले अपना दावा तो पेश कर दो जाकिर, अपना दावा तो पेश कर दो जाकिर, कुरान हदीस से अपना दावा पेश करो। चलो अपना दावा पेश करो जाकिर। आधा घंटा हो गया सामाइन, अभी अपना दावा देखो कैसे पेश करते हैं। अरे पहले हमें तुम्हारा दावा तो पता चल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने कोई वजाहत ही नहीं, तुमको वजाहत देने नहीं आ रहा है। अपना दावा पेश करो। सुनो, अरे पहले हमें तुम्हारा तो दावा पता चल जाए कि तुम कहाँ मानते हो अल्लाह ताला कहाँ है, अपना दावा तो पेश करो ना। अरे यार, मैं जिससे बात कर रहा हूँ पहले मुझे ये तो पता चल जाए कि वो अल्लाह को कहाँ मानता है। आधा घंटा हो गया ना भाई, इतना आधा घंटा हुआ ना। मैं तो अभी सुनो, अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है ना, मैं बताऊंगा। अर्श आज़म के ऊपर है क्या? सुनो, मजाक उड़ा रहे हैं। एक मिनट, अल्लाह अर्श आज़म के ऊपर है या अर्श आज़म से ऊपर है? बता दो अभी, ये बताओ पहले, दावा तो अपना मुकम्मल करो। नहीं, आप अपना अकीदा नहीं बताएंगे, ऐसे ही वक्त बर्बाद करेंगे। तुमने क्या कहा था? वजाहत लेने के बाद जवाब दावा दोगे। मैंने तुमसे वजाहत ली, तुम अपनी वजाहत में ही फंस गए। आधा घंटा कोई वजाहत में, तुम अपनी वजाहत में तुम मुकम्मल ही करो ना। तुम 1-2 जुमलों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरह 2 जुमलों में वजाहत दे दो। तुम डर क्यों रहे हो जाकिर, तुम डर क्यों रहे हो? चलो वजाहत करो। आधा घंटा हो गया, तुम अपना अरे तो तुम बता दो तभी तो बताऊंगा। तुमने ही नहीं बताया है। कहाँ बताया? बताओ। 7 आसमानों के ऊपर, अर्श के ऊपर मुस्तवी अपने शान के लायक। अच्छा, तो अर्श आज़म के ऊपर है या अर्श आज़म से ऊपर है? अर्श आज़म के ऊपर है। अच्छा, अर्श आज़म के ऊपर है, यानी कि वो अर्श आज़म पे जैसे हम लोग जमीन पर हैं, मस्त हैं, इसी तरकीब से अल्लाह अर्श आज़म के ऊपर है। जो है ये ताली करा, देखिए सामाइन, अल्लाह अरे मिसाल इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि सामाइन के समझ में आ जाए कि अल्लाह अर्श आज़म के ऊपर है या अर्श आज़म के ऊपर है। ये बताओ। अल्लाह ताला अर्श आज़म के ऊपर है, बता दिया। अच्छा, अर्श आज़म से मस्त है अल्लाह। तो अल्लाह ताला सुनो तो सही। अरे जाकिर सुनो, ये बताओ अल्लाह ताला अर्श आज़म के ऊपर है, ये बताओ पहले। अल्लाह अर्श आज़म के ऊपर है तो अर्श आज़म पर मस्त है क्या अल्लाह? नहीं है।
मस्क नहीं है, तो अर्श आजम के ऊपर कितना ऊपर है? ये देखिए, ये तो कैफियत हो गई, कितना ऊपर है हमको तो नहीं अरे बताया तो गया। तुमने ही तो बता दिया मस्क नहीं है, ये कैफियत कितनी तुमने ऊपर ही तो बताई है। कितनी ऊपर है? अच्छा, तो ये कैफियत तुमने बताई है कि अल्लाह मस्क नहीं है। सुनो पहले, ये एक हाँ। कैफियत है जो तुमने बताई कि अल्लाह मस्क नहीं है, खुद ही कैफियत बयान कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये भी क्या बताओ कि कैफियत? कितना ऊपर है, ये बताओ। नहीं बताया गया हदीस में। अच्छा, हदीस में नहीं बताया गया, यानी कि तुम्हें भी नहीं नहीं बताया। मालूम है कि अल्लाह अर्श आजम के ऊपर है, ये तुम्हें भी नहीं मालूम है। हाँ, ये मालूम है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, कितनी ऊपर है? तुम तो कह रहे हो कि अल्लाह अर्श आजम के ऊपर नहीं है। फिर झूठ बोल दिया, देखो फिर झूठ। यार तुमने कहा कि अल्लाह अर्श आजम से मस्क नहीं है। सुनो, अल्लाह अर्श आजम से मस्क नहीं है, ठीक है। सुनो। मैंने कहा अल्लाह अर्श के ऊपर है, तो तुमने सुनो क्या सवाल जाकिर, किया? कितनी ऊपर है? जाकिर ये कितनी सुनो, ऊपर है? तुमने ये देखो कैसा कहा बोल बोल रहा है, देखो जाकिर अल्लाह का कैसा मजाक जाकिर उड़ा रहा है, सुनो देखो जाकिर सुनो जाकिर, इसीलिए तो आइम्मा तुमने सलफ ने कहा इनको कि कुफर का अल्लाह, फतवा दिया। अरे सुन तो लो, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या दिया है क्या नहीं, बाद में बात करेंगे, पहले ये इसीलिए बताओ। तो तुम तुमने कहा कि मातूरी अल्लाह बन के ताला, फिर जाकिर सुनो, इसीलिए तुमने तो कहा तुम अल्लाह फिर ताला, अरे इसलिए सुन तो लो यार, क्यों डर रहे हो। तुमने कहा कि अल्लाह ताला अर्श आजम से मस्क नहीं है, उससे ऊपर है, यानी कि तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह अर्श आजम के ऊपर नहीं है, वो अर्श आजम से ऊपर है, और कितना ऊपर है वो हम नहीं जानते, यानी अल्लाह अर्श आजम के ऊपर नहीं है, तुम खुद ही कह रहे हो। ये देख लीजिए, ये देखे सामीन, जो आज तक अल्लाह को अर्श आजम के ऊपर बता रहे थे, खुद ही कह रहे हैं कि अल्लाह अर्श आजम के ऊपर नहीं है। यानी जाकिर अब की बार में अपना कोई और दावा पेश करना। अब हम तो अच्छा, तुम अल्लाह को अर्श आजम के ऊपर क्यों कह रहे हो? अच्छा ये बताओ, अर्श आजम के ऊपर क्यों कह रहे हो? हम अगर अच्छा ये बताओ, तुम अर्श आजम के ऊपर क्यों कह रहे हो अल्लाह को? बोल रहा है कि अच्छा ये बताओ, सुनो जाकिर ये बताओ, जाकिर सामीन हजरात, आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जो चीज, जैसे मान लो ये मिसाल है, ये जमीन है, तो अब मैंने कहा ये चांद है जो ये जमीन पर नहीं है, तो क्या हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला हाँ ठीक है, ये ठीक है, हम ये कहेंगे कि चांद जमीन पर नहीं है क्योंकि वो जमीन से मस्क नहीं है। अगर चांद जमीन से मस्क होता तो हम ये कहते हैं कि चांद जमीन पर है, लेकिन हम चांद को क्या कहते हैं कि जमीन पर नहीं है, क्योंकि वो चांद जमीन से मस्क नहीं है। ठीक इसी तरकीब से जब ये कह रहे हैं कि अल्लाह अर्श आजम से मस्क नहीं है, तो फिर ये क्यों कहते हो तुम कि अल्लाह अर्श आजम के ऊपर है? ये तुम्हारा दावा है, तुम्हारे उसूल से ही बातिल हो जाता है। आसमान कहाँ है? अरे आसमान जहाँ भी हो, जमीन से तो मस्क नहीं है ना, जमीन के ऊपर तो नहीं है ना। मैं देता हूँ मिसाल। तो अब मुझे ये बताओ, तुम ये क्यों कहते हो कि अल्लाह ताला अर्श आजम के ऊपर है, ये बताओ पहले। मेरी बात सुनिए, इस तरह ये चांद और सूरज अल्लाह की मखलूक है, ये कहाँ है? आसमानों से भी दूसरे आसमान पर है। तो अल्लाह की अदना मखलूक कौन है आसमानों के दूसरे आसमान पर? इतनी दूर है। अरे ये बताओ, कौन है आसमानों के दूसरे आसमान पर? अच्छा, वो आसमान को चिपका हुआ है। कौन? सूरज और चांद। अरे आसमान को चिपका हुआ कहाँ है वो? ना जमीन को चिपका हुआ है। कहाँ पर पढ़ा आपने? अच्छा तो जमीन पे है? नहीं, कहाँ पर पढ़ा आपने? नहीं ये बताओ, जमीन में। हाँ तो कहाँ है? जमीन पे तो कहाँ पे है? ये देखो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझ पर पढ़ रहे हैं और कह रहे, तो कहाँ है? एक मिनट, सूरज चांद कहाँ पर है? जाकिर चांद के बारे में बोले या तुम सूरज के बारे में बोले? कि ये आसमान में मैं दोनों के बारे में बोला, कहाँ पर है? अच्छा बताओ कहाँ पे है? अगर मैं बता दिया तो तौबा कर लेते भी। कहाँ पर तौबा? मैं बताऊंगा ना, किस चीज से तौबा? जी अमान, हाँ। कोई कह रहा है कि ये झाड़ जमीन पे लगा हुआ है, लेकिन जो उसका लास्ट का जो पत्ता है तो उसको भी क्या जमीन पे माना जाएगा? वो तो हवा में है ना। मैं ये कह रहा हूँ, सही बात है सहरान भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जाकिर ने कहा कि अल्लाह अर्श आजम से मस्क नहीं है, इसने कैफियत बयान की, तो फिर ये क्यों कहता है कि, तो फिर ये क्यों कहता है कि अल्लाह अर्श आजम पर है? अर्श की तो खुद ही इसने नफी कर दी। वहाबियों को खुद ही नहीं पता है कि ये आखिर कर क्या रहे हैं, बक रहे।
ये कल से दावा अर्श पे करता था कि अर्श पे जो नहीं माने वो काफिर है। इसने हमसे बात करने के बाद इसने दावा ही बदल दिया। इसने खुद ही मान लिया कि अल्लाह ताला अर्श पर नहीं है। अरे तो अल्लाह की, अब इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह की फतवे की जद में तो सबसे पहले तू आया। मैं तो मानता हूँ अल्लाह ताला अर्श के ऊपर। अच्छा, अर्श के ऊपर है। अच्छा, एक मिनट, अभी तो तूने कहा कि अल्लाह अर्श के ऊपर नहीं है। तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम भी तो वही कह रहे हो, अल्लाह अर्श पे नहीं है। अरे मियाँ, तू ये कह रहा है, तू ये कह रहा है कि अल्लाह ताला अर्श आजम के ऊपर नहीं है, अर्श आजम से ऊपर है, तू ये कह रहा है। देखो सामीन, अपना दावा इनने पेश नहीं किया, अपने दावे में खुद फंस गया। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, खुद अपने आओ दाव में सयाद फंस गया। मैं एक मिसाल दे रहा था। एक मिनट, और कह रहे थे, और सुनो, एक और बात इनने ये कही सूरज और चांद के बारे में कि वो आसमानों में। चांद और सूरज अल्लाह की मखलूक है, ऊपर होके उसकी रोशनी। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो यानी कि अल्लाह की कुदरत अर्श आज़म पर है, अल्लाह नहीं है, तो ये कह रहा है। ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, यानी कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह की कुदरत है अर्श आज़म पर। जाकिर, यानी कि तू ये कह रहा है, सूरज की रोशनी से मिसाल देकर ये कह रहा है कि अल्लाह भी ऐसी ही है, अल्लाह की कुदरत है अर्श आज़म पर, अल्लाह नहीं है। नहीं है आसमान पर। अच्छा, जमीन पर अल्लाह मौजूद नहीं है। इमाम अबू हनीफा भी नहीं बता रहे कि सुन, तो तू कह रहा है कि अल्लाह अर्श आज़म पर भी नहीं है। सुन, तू कह रहा है कि अल्लाह अर्श आज़म पर भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह अर्श आज़म के ऊपर है, उसका इल्म हमारे साथ। तू अभी कह रहा था कि नहीं है। झूठ, मैं कहा ही नहीं। अल्लाह की लानत हो झूठों के ऊपर। तूने अभी ये नहीं कहा था कि अल्लाह अर्श आज़म पर मस्क नहीं है, तूने अभी कहा नहीं था। सहरान भाई, इसने अभी ये नहीं कहा था कि अल्लाह अर्श आज़म से मस्क नहीं है, अल्लाह अर्श आज़म से उठा हुआ है। 40 मिनट इसने दावा बदल दिया, इसने दावा बदल दिया, फिर चेंज कर दिया। चलो उसको फिर घेरते हैं। तो कहाँ है, चल बता। इतना गलीज और बदतरीन अकीदा। सुन, तो तू अपने ही दावे में फंस गया है। तूने खुद कहा है कि अल्लाह ताला अर्श आज़म के ऊपर है ही नहीं, मस्क नहीं है। तू कह रहा है कि अल्लाह ही बेहतर जाने, यानी कि अर्श आज़म पर नहीं है, और कितना ऊपर है ये तू भी नहीं जानता, लेकिन अर्श आज़म पर नहीं है ये जानता है तू। तू नहीं कहा था वे। नहीं, मैं दलील दे दूंगा इसके ऊपर। अगर मैं कहा तो मैं दलील दूंगा ना। चल, हो गया तेरा काम। तो दोस्तों, आपने जाकिर वहाबड़े कज़्ज़ाब, दीन के दुश्मन और अकल से पैदल की तज़ाद भरी गुफ्तगू तो सुन ही ली होगी। क्या कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श आज़म पर अपनी ज़ात मुबारक के मुताबिक मौजूद है। यही वहाबड़ों के अक़ीदे भी हैं, और ये जिन सुन्नियों के पास जाता है सबसे यही अक़ीदा गलीज़ अपना बयान करता है। हमसे भी किया, लेकिन जब हमने इसकी वजाहत ली कि अर्श आज़म से टच है, तो कह रहा नहीं, टच नहीं है। तो हमने इससे पूछा कितना ऊपर है, तो कह रहा मुझे नहीं पता। तो इसकी बातों से क्या साबित हुआ कि ये कह रहा है कि अर्श आज़म पे टच भी नहीं है और कितना ऊपर है इसे पता भी नहीं है। तो इसी की बातों से ये भी साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात मुबारक के मुताबिक अर्श आज़म पर मौजूद नहीं है। लेकिन ये क्या कहता फिरता है सबसे, ये वहाबड़ों के क्या अक़ीदे है कि अर्श आज़म पर मौजूद है। यही बात ये मुफ्ती ज़ुबैर साहब से कह रहा था, और जितनी भी इसने दलीलों की बात की थी, जो भी दलीलें दे रहा था, बता रहा था, उसमें इसने बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला है। जैसे कि हम कहें कि दिन में कि रात है और रात में कहें कि दिन है, ऐसा इसने झूठ बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों के जवाब हैं, लेकिन इन वहाबड़ों के जो गंदे और गलीज़ अक़ीदे हैं, जब वजाहत लो तो वो गंदे और गलीज़ अक़ीदे और भी ज़्यादा मज़ीद इन्हीं की बातों से बातिल नज़र आते हैं। जैसा कि आपने जाकिर वहाबड़े कज़्ज़ाब, दीन के दुश्मन और अकल से पैदल की गुफ्तगू में सुन ही लिया होगा कि कितना ही ज़्यादा ये तज़ाद कर रहा था। तो इसकी ये जोकरी पे जब इसकी हंसी बन रही थी तो ये मज़ीद और घबरा गया। तो इसने सोचा अब मैं क्या करूं, तो कहने लगा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कर रहा हूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र कर रहा हूं, और तुम लोग हंस रहे हो। तो ये अपनी जोकरी पे बनने वाली हंसी देखो किधर लेकर के जा रहा था। इतने कज़्ज़ाब और मक्कार होते हैं ये लोग, गुस्ताखी की किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग।
दोस्तों अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, इन लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक के मुताबिक ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अस्तगफिरुल्लाह अर्श आज़म पर कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, वो चलता भी है, दायां बायां भी है उसके लिए, यानी कि उसके लिए दाईं सिमत भी है और बाईं सिमत भी है। तो दाईं और बाईं सिमत का मतलब क्या है? जैसे कि हम कहें ये चाँद है, तो चाँद के दाएं क्या है? ये सितारे हैं। बाएं क्या है? ये सितारे हैं। अगर सितारे भी ना हो तो भी जगह मौजूद है। तो अस्तगफिरुल्लाह इन लोगों के अक़ीदे से क्या साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ये कह रहे हैं कि उसके लिए दाईं और बाईं सिमत भी है। तो क्या अस्तगफिरुल्लाह वो दाईं और बाईं सिमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक से ज़्यादा बड़ी है? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसे ऐसे गलीज़ और गंदे इनके अक़ीदे हैं, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम दिखा भी सकते हैं, मौके पर बता भी सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी कभी भी बग़ैर दलील बात नहीं करते, जो भी बात करते हैं दलील के साथ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। ये दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा।